Welcome on DC online platform. I am Sunil Kakadi, faculty in mathematics. Today we will see a very important topic, that is properties of a triangle from the chapter of trigonometric function. We will take today the previous year questions of NDA. So the first example is, in the triangle ABC, the angles are in AP. एक ट्रायंगल दिया है, उसके एंगल्स कैसे है, AP में है. सपोज let angle A, B and C are in AP. Condition of AP is twice the middle, that is 2B equals to sum of first and last, that is A plus C. तो condition क्या रहा है हमारे पास, 2B is equal to A plus C. So we know that the sum of angles of a triangle, that is A, we know that angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. So value of A plus C will be 2B. So 2B plus B equals to 180 degree. So 2B plus B, that is 3B equals to 180 degree. So B will be, if I divide by 3, so we get B equals to 60 degree. So value of B is 60 degree. So we have to use angle B. So apply करेंगे by cosine rule. So formula of cosine rule for angle B. So cos B equals to A square plus C square minus B square upon 2AC. This is condition for cos B, formula of cos B. So cos of angle B is 60 degree is equal to A square plus C square minus B square upon 2AC. So value of cos 60 is 1 by 2 equals to A square plus C square minus B square upon 2AC. So 2 get cancel out, divide का AC यहाँ पर multiply हो जाएगा, तो AC equals to A square plus C square minus B square. Therefore value of B square यहाँ से आपके पास आ जाएगा, प्लस का यहाँ माइनस होगा, तो B square equals to A square plus C square minus AC. तो ये आपके पास required solution आ गया है. If the triangles are in AP arithmetic progression, then अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिलेशन आता है B square is equal to A square plus C square minus AC. ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का solution. Now we'll see the example second one. In the triangle ABC, the side BC is given √39, side AC is given 5 and side AB is given 7. So we have to find the measure of angle A. So if you observe in the triangle, suppose we have a triangle ABC, to side BC, we know that the opposite to the angle A, the side small a, that is BC small a, is given root of 39. So opposite angle B के opposite रहता है small b, that is AC is given 5 and AB, side AB opposite to C, angle C, that is given 7. So A, B and C, small ABC we have to given. Now we have to find out the measure of angle A. Now to find the measure of angle A, आप use कर सकते हो by cosine rule. Just यहाँ पर use किया था हमने ना cosine rule का formula, cos B के लिए use किया था. अब यहाँ पर use करेंगे which angle? For angle A की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो angle A के लिए use करेंगे. So by cosine rule, cos A equals to B square plus C square minus A square upon 2BC. So put the values of small ABC. So B is 5 का square 25 plus C is 7 square is 49 minus A square, A is root of 39, उसका square आ जाएगा 39 upon 2 into B is 5 and C is 7. So
25 प्लस 49 माइनस 39 दैट इज 10 प्लस का 10 आएगा और ये आ जाता है दैट इज 10 इंटू 7 70। तो न्यूमरेटर में आएगा 25 प्लस 10 दैट इज 35 अपॉन 70। ये आ जाएगा 2 दैट इज 1/2। तो cos of A equals to 1/2. So cos of A is 1/2. That means cos A equals to, what is value of 1/2 in which angle? That is cos of 60 degree. Cos of 60 that is 1/2 आता है। cos cancel तो एंगल A आ जाता है हमारे पास 60 that is in radian pi/3. So measure of angle A we get the value, that is value measure of angle A we get pi/3 or that is in degree 60 degree. This is solution of the second example. So take the screenshot of this. Now example number 3rd. In the triangle ABC, if C is given 2, angle A is given 120 degree and side A is given √6. So we have to find the measure of angle C. तो यहाँ पर देखिए आपको दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है। जब भी क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज आर गिवन, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, 2 एंगल्स एंड 1 साइड, तब आपको यूज करना है साइन रूल। 2 sides 1 एंगल, नहीं तो 2 एंगल्स एंड 1 साइड। सो यूज करेंगे यहां पर साइन रूल। सो गिवन डेटा हमारे पास C है, A है एंड एंगल A एंड साइड A। सो बाय साइन रूल, सो साइन रूल, साइन A अपॉन A इक्वल्स टू साइन B अपॉन B इक्वल्स टू साइन C अपॉन C। तो यहां पर आपको एंगल A फाइंड करना है, इसलिए मैंने क्या किया, साइन को ऊपर लिया, ABC जो एंगल से वो न्यूमरेटर में लिया। सपोज क्वेश्चन में आपको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c में से कोई वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं सेकंड फॉर्म में, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c के फॉर्म में। सो यहां पर आपको एंगल A दिया है एंड C एंड A साइड दिया है, तो हम क्या करेंगे, C साइड का और A का, A और C का गिवन क्या है, स्मॉल a स्मॉल c, तो A एंड C का रिलेशन यूज करेंगे। देखिए कैसा, देयरफॉर कंसीडर साइन A अपॉन A, साइन C अपॉन C। सो पुट द वैल्यूज, एंगल A इज गिवन, आपको एंगल C फाइंड करना है, सो यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन C इक्वल्स टू C इंटू साइन A अपॉन डिवाइड में देखो क्या आ जाएगा, ये C यहाँ पर चला गया तो C इंटू साइन A, डिवाइड का ये रहेगा एज इट इज और साइन C मिल जाएगा। सो साइन ऑफ C इक्वल्स टू C इंटू साइन A, वैल्यू ऑफ C इज 2 इंटू साइन A का वैल्यू कितना है, साइन A 120, तो हम लिख सकते हैं 120 को दैट इज 90 प्लस 30, अब लिख सकते 90 प्लस 30, डिवाइड में A का वैल्यू रूट ऑफ 6, तो साइन C इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये कितना मेरे पास 120, उसके लिए स्प्लिट अप किया मैंने 90 प्लस 30 में। सो ये कंसिडर सपोज थीटा, सो वी नो दैट साइन 90 प्लस थीटा कितना आता है, ये कॉस ऑफ थीटा या माइनस कॉस थीटा C है। हाउ टू फाइंड आउट, ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला एक शॉर्ट ट्रिक है फाइंड करने का अलाइड एंगल्स का। कंसीडर साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, दीज आर द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस कॉस का साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन और माइनस साइन का माइनस कॉस। तो आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, कंसीडर दिस एंगल एज अ थीटा, सो वी रिक्वायर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, विल स्टार्ट फ्रॉम साइन एंड गो हेड 90 डिग्री, यहां से स्टार्ट करेंगे आगे जाएंगे 90 डिग्री, तो हमको क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ थीटा, सो वी गेट द कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री अपॉन √6 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू ऑफ कॉस 30 इज, नीचे हमारे पास है √3 इंटू √2 और
ये वाला वैल्यूज आता है cos 30 का √3/2, ये 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ साइन c इक्वल्स टू क्या बचेगा 1/√2, सो 1/√2, तो साइन c इक्वल्स टू 1/√2 किसका रहता है साइन 45 डिग्री, दैट इज साइन कैंसिल, तो मेजर ऑफ एंगल c वी गेट द 45 डिग्री और π/4 in radian. So measure of angle C we get π/4 और 45 डिग्री. ये हुआ है थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन. नाउ एग्जांपल नंबर 4, if ABC are in AP and B/C ratio is given √3:√2, then what is the value of sin C? देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, आपको दो साइड दिया है, देखो सेम क्वेश्चन है, यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये C एंड A टू साइड्स आर गिवन, वन एंगल इज गिवन. यहां पर आपको क्या बोला है, दो साइड्स दिया है, टू साइड्स आर गिवन, लेकिन यहां पर एंगल आपको नहीं दिया है. इसमें एंगल दिया क्या नहीं दिया है. नाउ सी एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ABC आर इन AP बोला है, तो वी नो दैट इफ ABC एंगल्स ABC are in AP, so if three terms are in P, what is the condition, twice of the middle term equals to first plus last. तो यहां से 2B कितना आ रहा है हमारे पास, A plus C आ रहा है. we know that angle A plus angle B plus angle C equals to 180 in the triangle. so A plus C कितना है 2B, so 2B plus B equals to 180. so यहां से B आ जाता है हमारे पास 60. सॉल्व कीजिए, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसमें हमने B का वैल्यू फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था 60 डिग्री. नाउ तो B/C हमारे पास रेशियो है और एक एंगल है, सो अप्लाई करेंगे बाय साइन रूल. तो साइन रूल क्या रहता है, हमको क्या फाइंड करना है, इसमें एंगल साइन C फाइंड करना है, तो एंगल ही फाइंड करना है, तो ऊपर आपका साइन A/A आएगा, साइन B/B आएगा और साइन C/C आएगा. सो आपके पास B और C में रिलेशन है, B और C में B/C मतलब B और C का रिलेशन दिया, आपको रेशियो दिया है, तो ये हमारे पास नहीं है, तो एंगल B है, तो हमको यहां से क्या मिलेगा साइन C मिल जाएगा. सो लेट कंसीडर साइन B/B साइन C/C. तो ये कंसीडर कर रहा हूं मैं, साइन B/B इक्वल्स टू साइन C/C. इफ यू कंसीडर दिस वन, वी वांट द वैल्यू ऑफ साइन C. देखिए यहां से क्या आ गया साइन C, साइन C इक्वल्स टू C इंटू दिस, तो C इंटू साइन B/ डिवाइड का B एज इट इज. सो साइन C इक्वल्स टू C/B इज रेशियो नॉट गिवन. आपको क्या दिया है, देखो रेशियो किसका दिया है, B/C का दिया है, राइट. C/B, देखो C कितना है, C इज √2 एंड B इज √3, उसका हमने क्या लिया रेसिप्रोकल लिया, इनटू साइन ऑफ B इज 60 डिग्री, सो साइन C इक्वल्स टू √2/√3 इनटू साइन 60 इज √3/2. देखो यहां से √3 कैंसिल हो जाएगा और √2 इंटू √2/2 कितना आएगा 1/√2 आएगा. सो साइन C इक्वल्स 1/√2, देयरफॉर साइन C इक्वल्स टू यह वैल्यू आता है साइन 45 डिग्री का. साइन कैंसल, तो मेजर ऑफ एंगल C इज 45 डिग्री, दैट इज π/4. देखो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये और ये दोनों क्वेश्चन नियर अबाउट सेम टाइप के थे, लेकिन क्वेश्चन का जो सेंटेंस था वो कुछ अलग था, सेंटेंस चेंज था. यहां पर आपको C बोला था, A बोला था एंगल A, यहां पर क्या बोला था, एंगल्स आर इन AP, एंगल इज नॉट गिवन. फ्रॉम द गिवन कंडीशन आपने क्या किया, एंगल फाइंड आउट किया, दैट इज एंगल B. उसके बाद B/C रेशियो है टू गिवन, एंगल नहीं था, हमने यहां से एंगल फाइंड किया, तो एंगल C फाइंड करने के लिए, दैट इज साइन C फाइंड करने के लिए हमने यूज किया ये वाला फॉर्मूला. एक्चुअली आपका आंसर कहां तक सही था, ये वाला, बिकॉज आप क्वेश्चन में एंगल पूछे है क्या, नहीं, आपको क्या पूछा था, ओनली साइन C का वैल्यू. तो साइन C आपका ये 1/√2 आ रहा है. सपोज आपको एंगल पूछते आगे, तो हम ये वाला स्टेप आगे कर देते एक स्टेप. सो थर्ड एंड फोर्थ का सॉल्यूशन नोट डाउन कीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट.
तो इन दिस सेशन में हमने देखा ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए। ओके, थैंक यू वेरी मच।